Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to our channel Habib Sir Classes. In this video, we'll be discussing Unit 4, Chapter 5, Admission of a Partner, Practical Problems. Here is the question, page number 249, question number 13. Praveen and Naveen are partners sharing profit and losses in ratio of 3:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as follows. पार्टनर्स कौन कौन है यहाँ पर? प्रवीण और नवीन। ये लोगों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या है? 3:1। सो 3+1 क्या होता? 4। सो जो भी अमाउंट बांटना है उसके 4 हिस्से होंगे, जिसमें 3 हिस्से प्रवीण को मिलेंगे, एक हिस्सा नवीन को मिलेगा। फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट। यहाँ पे कुछ लायबिलिटीज और कुछ एसेट्स दिया हुआ है एंड वी आर प्रोवाइडेड विद सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो दे डिसाइडेड टू एडमिट किरण इनटू पार्टनरशिप ऑन फॉलोइंग कंडीशंस। तो पहले से पार्टनर्स कौन कौन है? प्रवीण और नवीन। नया पार्टनर कौन आ रहा है बिजनेस में? किरण। किरण हैज टू ब्रिंग 25,000 एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। तो बंदा एक हिस्से के लिए, 5 हिस्सों में एक हिस्से के लिए कितने पैसे दे रहा? 25,000। मशीनरी एंड फर्नीचर भी डिप्रिशिएटेड बाई 10%, बिल्डिंग्स भी अप्रिशिएटेड बाई 20%, स्टॉक बाई 10%, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 20,000। क्रिएट ए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 5% ऑन ट्रेड डेट्स। शो नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम में भी अपने को गुडविल दोनों बार स्पेसिफाई करा हुआ है। एसेट्स में एक बार लास्ट में गुडविल 28,000 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे नीचे गुडविल टू बी वैल्यूड एट 20,000 दिया हुआ है। तो अपने पास पहले से जो एसेट्स में गुडविल है, इसको हम गुडविल के अकाउंट में टू बैलेंस बी बाई डी करके बताएंगे। तो ये 28,000 को 20,000 करना है, मतलब अपने पास 8,000 एक्स्ट्रा है। सो इट विल बी रिटर्न ऑफ। Let's start the problem. Here is the solution. How many accounts do we prepare? Revaluation account, cash account, goodwill account, partners capital account, followed by balance sheet. Partners capital account and balance sheet of new firm, new balance sheet of new firm. The format for revaluation cash and goodwill account is date particulars JF amount rupees, date particulars JF amount rupees, towards extreme left DR debit, towards extreme right CR credit, and the name of the accounts will be revaluation account, cash account, goodwill account. Or else simply we can draw the format for revaluation cash and goodwill as particulars amount rupees, particulars amounts rupees. The format for partners capital is particulars Praveen amount rupees, Naveen amount rupees, Kiran amount rupees, particulars Praveen amount rupees, Naveen amount rupees, Kiran amount rupees. Towards extreme left DR debit, towards extreme right CR credit, and the name of the account will be taken as partners capital account. And the heading for balance sheet will be new balance sheet of Praveen, Naveen and Kiran as on 31st March 2020. And the format will be liabilities amount rupees, assets amount rupees. रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स क्या है? मशीनरी एंड फर्नीचर भी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 20,000, तो 10% ऑफ 20,000 is 2,000. As it is decrease in the value of asset, it will be shown on debit side of revaluation account as to machinery account 20,000 into 10/100, it is 2,000 rupees. इसको बैलेंस शीट में कैसा बताएंगे? असेट्स में लिखेंगे हम मशीनरी 20,000, प्लांट एंड मशीनरी 20,000 माइनस डिप्रिसिएशन 2,000, सो 20 - 2 इट वर्क्स आउट टू बी 18,000। मशीनरी के बाद और डिप्रिसिएशन किस पे देना है? फर्नीचर पे। फर्नीचर की वैल्यू 10,000 है, 10,000 का 10% क्या होता? 1,000। 10% निकालने का तरीका क्या है? जितने जीरोज है उसमें से एक जीरो कम कर देंगे। तो फर्नीचर की वैल्यू 10,000 है, 10,000 का 10% 1,000। So again it is decrease in value of asset, so it will be shown on debit side of revaluation account as to furniture 10,000 into 10/100, it works out to be 1,000 rupees. इसको बैलेंस शीट में कैसा बताएंगे? assets में लिखेंगे फर्नीचर 10,000 minus depreciation 1,000, 10 - 1 it becomes 9,000. Then after furniture we have buildings to be appreciated by 20%. अब यहाँ पे buildings की वैल्यू कितना है? 20,000 है। 20,000 का 10% क्या होता है? 2,000। 20% क्या होता? 4,000. So buildings are to be appreciated. तो यहाँ पे buildings की वैल्यू बढ़ रही। Increase in the value of asset will be shown on credit side of revaluation. So revaluation के credit में लिखेंगे by buildings account 20,000 into 20/100 which works out to be 4,000. इसको बैलेंस शीट में कैसा बताएंगे? assets में लिखेंगे buildings 20,000 plus appreciation 4,000. So 20 plus 4 it becomes 24,000. Then after buildings we have stock by 10%. Stock की वैल्यू कितना है? 15,000 है। 15,000 का 10% क्या होता है? 1,500. So as it is increasing the value of asset, it will be shown on credit side of revaluation account as by stock account 15,000 into 10/100 which is 1,500. इसको बैलेंस शीट में कैसा बताएंगे? असेट्स में लिखेंगे स्टॉक 15,000 plus appreciation 1,500. 15 plus 1 16 plus 500 it becomes 16,500. Then after stock we have
goodwill of the firm is to be valued at 20,000. ये goodwill account बनाते वक्त देखेंगे. Then create a provision for bad debts at 5% on trade debtors. Trade debtors की value क्या है? 30,000. 30,000 का 10% क्या होता? 3,000. 5% will be half of it, which will be 1,500. So it is decrease in the value of assets. So it will be shown on debit side of revaluation account as two provision for bad debts 30,000 into 5/100, which works out to be 1,500. इसको बैलेंस शीट में कैसा बताएंगे? ट्रेड डेप्टार्स 30,000 minus PVD 1,500. 30 minus 1 39 minus 5 minus 500 30 minus 1 29 29 minus 500 it becomes 28,500. So now we are done with all the adjustments related to revaluation. Now we'll be balancing revaluation. डेबिट में हम यहाँ तक लिखे 2,000 1,000 1,500. So the total on debit side is 2 plus 1 3 3 plus 1 4,500 and the total on credit side is 5,500. डेबिट का टोटल 4,500 है, क्रेडिट का टोटल 5,500 है. तो इन दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है? 5,500 ज्यादा है. So on both the sides will be writing the total as 5,500 5,500. अब 5,500 में से हम 4,500 माइनस करेंगे तो अपने को 1,000 रुपये बचेंगे. तो ये 1,000 रुपये हम क्या करेंगे? प्रॉफिट करके ट्रांसफर करेंगे. इसको ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स. उनको ने ओल्ड पार्टनर्स प्रवीण एंड नवीन. So it will be shown as to profit transfer to Praveen capital account, Naveen capital account in their old profit sharing ratio, which is 3:1. So 3 plus 1, it becomes 4. So 1,000 rupees when divided into 4 shares, the value of each share will be 250 rupees. Praveen has 3 shares, so he'll be getting 750 rupees. Naveen has 1 share, so he'll be getting 250 rupees. So here it will be shown as to profit transfer to Praveen capital account 1,000 into 3/4 750. Naveen capital account 1,000 into 1/4 250. Coming to next account, which is cash account. So cash account में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्यों? इट इज एन एसेट, ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस. उसी तरह कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्यों? इट इज ए लायबिलिटी, ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस. तो कैश का जो अमाउंट है वो हम क्वेश्चन के एसेट्स में देख के लिखेंगे. एसेट्स में कैश एट बैंक 5,000 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे जो है ना अकाउंट का नाम बैंक अकाउंट कर लेंगे और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में 5,000 लिखेंगे. नेक्स्ट कैपिटल अमाउंट जो है वो लायबिलिटीज में चेक करेंगे कैपिटल्स के नाम पे. प्रवीण कैपिटल 30,000 एंड नवीन कैपिटल 20,000. सो इट विल बी शोन ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 फॉर प्रवीण, 20,000 फॉर नवीन. देन यहाँ से हम जो सिंपल टेक्निक यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? उसके पहले टू बैलेंस बीबीडी लिखने के बाद पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे. पार्टनर कितना कैपिटल लेके आ रहे हैं? न्यू पार्टनर 25,000. तो बिजनेस में पैसा आ रहा, तो कैश अकाउंट का रूल क्या है? जो पैसा आ रहा वो हम कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे. तो यहाँ पे किरण 25,000 कैपिटल लेके आ रहे हैं, तो टू किरण कैपिटल 25,000. फिर नया बंदा अपने साथ गुडविल के पैसे भी लाना, बट ये प्रॉब्लम गुडविल इज वैल्यूड का है, मतलब इसमें अभी गुडविल के पैसे नहीं आ रहे, तो सिर्फ कैपिटल का पैसा आ रहा. सो विल बी शोइंग ओनली कैपिटल इन बैंक अकाउंट. टू किरण कैपिटल 25,000. तो हमेशा यहाँ पे जो टू गुडविल आता था इस बार नहीं आएगा. तो नया बंदा आने से पहले ये लोगों के पास कितने पैसे थे? 5,000. नए बंदे का कैपिटल कितना है? 25,000. तो अब टोटल ये लोगों के पास कितने पैसे हैं? 30,000. तो क्रेडिट में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो दोनों का टोटल क्या करेंगे आप? 30,000 लिख देंगे. इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? बाई बैलेंस C/D 30,000. द सेम विल बी ब्रॉट डाउन ऑन ऑपोजिट साइड एज टू बैलेंस B/D 30,000. अब इसके बाद सिंपल टेक्निक क्या है? सुबह के अकाउंट में शाम का नाम लिखे, शाम के अकाउंट में सुबह का नाम लिखेंगे. दिन के अकाउंट में रात का नाम लिखे, रात के अकाउंट में दिन का नाम लिखेंगे. हम के अकाउंट में तुम का नाम लिखे, तुम के अकाउंट में हम का नाम लिखेंगे. आज के अकाउंट में कल का नाम लिखे, कल के अकाउंट में आज का नाम लिखेंगे. बैंक के अकाउंट में किरण कैपिटल का नाम लिखे, किरण कैपिटल के अकाउंट में बैंक का नाम लिखेंगे. इधर टू में लिखे, इधर बाई में लिखेंगे. तो बाई बैंक अकाउंट 25,000. नेक्स्ट हम कैश के अकाउंट में टू गुडविल लिखते थे, तब गुडविल के अकाउंट में बाई कैश लिखते थे, बट इस बार हम कैश के अकाउंट में गुडविल नहीं लिखे तो गुडविल के अकाउंट में कैश भी नहीं लिखेंगे. अब रहा सवाल गुडविल का. गुडविल अपने पास दोनों जगह स्पेसिफाई करा हुआ है, एक एसेट्स में 28,000, दूसरा नीचे एडजस्टमेंट में गुडविल टू बी वैल्यूड, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 20,000. सबसे पहले हम ये जो 28,000 है इसको गुडविल के अकाउंट में टू बैलेंस B/D करके 28,000 लिखेंगे. क्यों? इट इज एन एसेट, ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस. सो हियर इज गुडविल अकाउंट जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस B/D 28,000. अब एडजस्टमेंट में क्या बोला? गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 20,000. मतलब ये 28,000 को सिर्फ 20,000 करना है, मतलब अपने पास 8,000 रुपये एक्सेस है. सो इट विल बी रिटर्न ऑफ बाई
ट्रांसफरिंग टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अपने पास एक्सेस अमाउंट कितना है, था कितना 28,000, 28,000, उसको करना कितना है 20,000, 20,000 करना है। सो 28,000 को 20,000 करना है, तो एक्सेस अमाउंट कितना है 8,000। तो दिस 8,000 विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन क्रेडिट साइड ऑफ गुडविल अकाउंट। तब यहाँ पे गुडविल के क्रेडिट में करेंगे बाई प्रवीण कैपिटल। 8,000 के हम 4 हिस्से करें तो एक हिस्सा 2,000 का आता। प्रवीण हैज 3 shares, so he'll be getting 6,000. Naveen has 1 share, so he'll be getting 2,000. So this amount is being written off. तब यहाँ पे गुडविल के क्रेडिट में प्रवीण और नवीन का नाम लिखे, तो प्रवीण और नवीन के डेबिट में गुडविल का नाम लिखेंगे। हमेशा क्या होता था, गुडविल के डेबिट में पार्टनर्स के नाम आते थे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में गुडविल आता था। इस बार गुडविल के क्रेडिट में पार्टनर्स के नाम आ रहे, तो पार्टनर्स के डेबिट में गुडविल का नाम आएगा। टू गुडविल 6,000 रुपीज, 2,000 रुपीज। अब गुडविल का टोटल करिए। द टोटल ऑन डेबिट साइड इज 28,000, वेयर एज द टोटल ऑन क्रेडिट साइड इज 6 + 2 8,000। तो दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है, 28 ज्यादा है। सो 28,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ गुडविल अकाउंट। 28,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, 28,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो अब 28 में से 8,000 माइनस कर दिए तो क्या बचते 20,000, विच विल बी शोन एज बाई बैलेंस C by D 20,000। द सेम विल बी शोन ऑन अपोजिट साइड एज टू बैलेंस B by D 20,000। नेक्स्ट, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, बैंक हो गया, गुडविल हो गया। अब रिवैल्यूएशन का जो अकाउंट था उसमें हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट प्रवीण और नवीन में बांटे थे। सो रिवैल्यूएशन के अकाउंट में प्रवीण और नवीन का नाम लिखे, तो प्रवीण और नवीन के अकाउंट में रिवैल्यूएशन का नाम लिखेंगे। इधर डेबिट में लिखे, इधर क्रेडिट में लिखेंगे। बाय रिवैल्यूएशन 750 फॉर प्रवीण, 250 फॉर नवीन। आफ्टर दिस देयर आर टू थिंग्स विच वी नीड टू कंसिडर इन एवरी प्रॉब्लम। दो चीजें ऐसे रहते हैं जिससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं देता। एक है जनरल रिजर्व्स, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व्स लायबिलिटी में दिया हुआ रहता, प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी में भी दे सकता, असेट्स में भी दे सकता। बट ये प्रॉब्लम में प्रॉफिट एंड लॉस कहीं भी दिया हुआ नहीं है। अगर लायबिलिटी में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है तो वो पुराने प्रॉफिट्स है, अगर असेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है तो वो पुराने लॉसेस है। तब यहाँ पे जनरल रिजर्व कितना है 10,000 रुपीज है। तो ये पुराने रिजर्व पुराने पार्टनर्स मेंटेन करे सो है। तो ये पैसा क्या करेंगे, पुराने पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके क्लोज करेंगे। तो 10,000 के हम 4 हिस्से करें तो एक हिस्सा 2,500 का आता। तो प्रवीण के 3 हिस्से है, सो ही विल बी गेटिंग 7,500। नवीन के 2 हिस्से है, 3:1, 4 हिस्से, तो ही विल बी गेटिंग 7,500। वो बंदे का एक हिस्सा है, सो ही विल बी गेटिंग 2,500। So it will be shown as by general reserves in partners capital account 7,500 for Praveen, 2,500 for Naveen. Now we'll be balancing partners capital 30 plus 7 37,000, 38,250, 38,250। तो डेबिट का टोटल कितना है 6,000, क्रेडिट का टोटल कितना है 38,250। दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है 38,250। तो 38,250 विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रवीण कैपिटल, 38,250 विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रवीण कैपिटल। अब ये 38,250 में से क्या करेंगे 6,000 माइनस करेंगे तो क्या पैसे बचते 32,250, विच विल बी शोन एज टू बैलेंस C by D। द सेम विल बी शोन ऑन अपोजिट साइड एज बाई बैलेंस B by D 32,250। नेक्स्ट, नवीन अकाउंट का टोटल करेंगे 20 + 2 22,750। द टोटल ऑन क्रेडिट साइड ऑफ नवीन अकाउंट इज 22,750 एंड द टोटल ऑन डेबिट साइड ऑफ नवीन अकाउंट इज 2,000। तो दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है 22,750 ज्यादा है। तो दोनों तरफ टोटल क्या लिखेंगे 22,750, 22,750। सो 22,750 में से 2,000 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या बचते 20,750, which will be shown as to balance carried down 20,750. The same will be brought down on opposite side as by balance brought down 20,750. अब किरण का टोटल करेंगे। किरण का क्रेडिट का टोटल 25,000 है, डेबिट का टोटल 0 है। कौन सा बढ़ के है 25,000। सो ऑन बोथ द साइड्स ऑफ किरण अकाउंट विल बी शोइंग द टोटल एज 25,000, 25,000। 25,000 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो क्या बचते 25,000, which will be shown as to balance C by D 25,000. The same will be shown on opposite side as by balance brought down 25,000। तो प्रवीण के पास कैपिटल अमाउंट कितना रहना चाहिए 38,250, जिसमें से 6,000 जो गुडविल राइट ऑफ हो गया वो हटा देने के बाद क्या बचेंगे 32,250। तो प्रवीण का कैपिटल अमाउंट कितना है 32,250। उसी तरह नवीन का कैपिटल अमाउंट कितना रहना चाहिए था 22,750, जिसमें से गुडविल का अमाउंट 2,000 राइट ऑफ होने के बाद क्या बचा 20,750। सो नो नवीन कैपिटल इज 20,750 एंड किरण कैपिटल इज 25,000। These capitals will be shown on liability side of new balance sheet. So here is new balance sheet.
new balance sheet of Praveen, Naveen and Kiran as on 31st March 2020. The format for which is liabilities amount rupees, assets amount rupees. सबसे पहले हम कैपिटल्स लिखेंगे. प्रवीण कैपिटल 32,250, नवीन कैपिटल 2,750, किरण कैपिटल 25,000. ये करने के बाद हम पुरानी बैलेंस शीट सामने रखेंगे, मतलब क्वेश्चन सामने रखते हुए लायबिलिटीज और असेट्स फिल करेंगे. सन्ड्री क्रेडिटर्स 48,000, इसको हम कुछ नहीं करें तो जैसा है वैसा नई बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में बताएंगे. सन्ड्री क्रेडिटर्स 48,000. देन वी हैव बिल्स पेबल 20,000, इसको भी हम कुछ नहीं करें तो जैसा है वैसा नई बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में बताएंगे. बिल्स पेबल 20,000. देन आफ्टर बिल्स पेबल वी हैव जनरल रिजर्व. ये बांट के खत्म कर दिए तो ये दोबारा नई बैलेंस शीट में नहीं बताएंगे. कैपिटल्स ये पुराने वैल्यूज थे, हम नए वैल्यूज सबके तीनों के बता दिए. तो वी आर डन विथ ऑल द आइटम्स ऑफ लायबिलिटीज. नाउ लेट अस हैव ए लुक ऑन द आइटम्स ऑफ एसेट्स. कैश एट बैंक, पुराना अमाउंट 5,000 था, नया बंदा अपने साथ 25,000 कैपिटल के लाया, तो अब ये लोगों के पास कितना पैसा है, 30,000 है. सो न्यू वैल्यू 30,000 विल बी शोन ऑन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज कैश एट बैंक 30,000. फिर कैश एट बैंक के बाद अगली चीज क्या है, ट्रेड डेटार्स 30,000. So it will be shown on asset side as debtors 30,000 minus provision for bad debts 1,500. 30 minus 1, 29 minus 500, 28,500. Then after debtors we have stock 15,000. So assets में बताएंगे stock 15,000 जिसपे 1,500 रुपये अप्रिसिएशन था, तो 15 plus 1,000 16 plus 500 16,500. Then after stock we have furniture 10,000, उसको हम assets में बताएंगे furniture 10,000 minus depreciation, so 10 minus 1 it becomes 9,000. Then after furniture we have machinery 20,000, so it will be shown on asset side as machinery. Plant and machinery 20,000 जिसपे अपने को adjustment है, so 20 minus depreciation 2,000 it becomes 18,000. Then after machinery we have buildings 20,000, so buildings की value क्या है, 20,000 है जिसपे अपने को 4,000 अप्रिसिएशन है, तो 20 प्लस 4 इट बिकम्स 24,000. और यहाँ पे जो गुडविल है वो 28,000 है, उसको अपने को क्या करना था, 20,000 करना था. तो गुडविल के अकाउंट में हम 28,000 ले लिए, उसमें जो एक्सेस 8,000 थे वो राइट ऑफ कर दिए, तो बचा क्या, कैरिड डाउन 20,000, ब्रॉट डाउन 20,000. तो 28,000 के गुडविल को 20,000 बताओ बोले, बता दे रहे. तो दिस विल बी शोन ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एज गुडविल 20,000. अब हम इन दोनों का टोटल करेंगे. द टोटल ऑन बोथ द साइड शुड बी दी सेम. So the total on liability side is 1,46,000 as well as the total on asset side is 1,46,000. Hope you have understood the topic. See you all in next video. Thank you.